الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ساری کائنات کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور حکومت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہی اللہ تعریف کے قابل ہے جو آسمان و زمین کی تمام حقیقتوں کو جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کی حقیقت اور ریئلٹی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی کتاب میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم ہرگز نہ سمجھنا، تم کبھی بھی یہ خیال مت کرنا، یہ سوچنا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں اور مجرموں کے کرتوتوں سے، ان کے کرائم اور جرائم سے بے خبر ہے، ان کو نہیں جانتا ہے۔ یعنی اگر تم ظالم ہو، تم اگر اللہ کی بات نہیں مانتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تم اگر زیادتی کر رہے ہو تو بھی اللہ کو خبر ہے، اور کوئی اور تمہارے اوپر اگر کر رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا، امیڈیٹلی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا انما یؤخرهم لیوم، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کو اس دن کے لیے مہلت اور موقع دے رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، نہ ان کی نظر ان کی طرف آئے گی اور ان کے دل بدحواس اور پریشان ہوں گے۔ اس دن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے جس دن ظالموں اور مظلوموں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جس دن لوگوں کو قبروں سے نکال کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو نکال کر کے لایا جائے گا، اور جو تمہارے سینوں میں اور دلوں میں چھپا ہوا ہے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کے باہر کرے گا۔ اور اس دن کوئی شخص اپنی برائی یا اچھائی اللہ سے چھپا نہیں سکے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی بھلائی اور نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ اور پاپ کیا ہوگا، وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھے گا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے The concept of war in Islam،
اسلام میں جنگ کا تصور کیا ہے؟ جب سے پہلگام میں حملہ ہوا اور پھر ہندوستان کی طرف سے اس پر جیسا ریٹیلیشن اور جوابی کارروائی سامنے آئی، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نان مسلموں کے دماغ میں بہت طرح کے سوالات پہلے سے بھی ہیں اور اس کے بعد اور زیادہ۔ کیا اسلام ٹیررزم کا سبق دیتا ہے؟ کیا اسلام کٹر واد کا لیسن سکھاتا ہے؟ کیا اسلام بے گناہوں کو مارنے کی تعلیم دیتا ہے؟ اور مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حملہ مسلمان ہی نہیں بلکہ نان مسلم بھی یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ جو حملہ ہوا اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ کیا یہ کوئی پلاٹ کیا ہوا ایک منصوبہ تھا یا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر آج بات کریں گے کہ اسلام میں جہاد کا، جنگ کا صحیح کانسیپٹ اور تصور کیا ہے۔ یہ ہم سب کو اس لیے بھی جاننا چاہیے تاکہ نان مسلموں کے دماغ میں جو مسلمانوں کی نفرت بھری جا رہی ہے اس کو ہم کلیئر کر سکیں اور ہم خود بھی سیٹسفائیڈ اور مطمئن رہیں کہ ہمارا دین، ہمارا دھرم، بہت سے نوجوان جدید تعلیم یافتہ ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقہ یہ چیزیں دیکھ کر کے صحیح ریئلٹی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کو ہی، مسلمانوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دے رہا۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جہاد اور جنگ 4 طرح کے ہیں اسلام میں، اور آپ دیکھیے گا یہ دیکھنے کے بعد کہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے جنگ۔ یہ باتیں جب سامنے آئیں گی تو اسلام میں جنگ اور جہاد صرف اور صرف برائی کے خلاف ہے، ایول کے خلاف ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی وہ کس طرح کی جنگیں تھیں، ان پر بھی لوگ سوالات اٹھاتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ اسلام نے جنگ کی نہیں بلکہ صلح کی بات کی ہے، مل کر کے رہنے کی بات کی ہے، بے گناہوں کے پروٹیکشن کی بات کی ہے۔ تو ہمارے آج کے خطبے کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد 4 طرح کے ہیں، جنگ 4 طرح کے ہیں۔ 2 جنگ ایسے ہیں جو انسان کو جب سے مسلمان ہوا یا شعور سنبھالا ہے تب سے لے کر کے مرنے تک کرنا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے اپنے آپ کے خلاف جہاد اور جنگ، خود کے خلاف جہاد۔ نمبر 2 شیطان کے خلاف جہاد، اور تیسرا خود مسلمانوں سے جہاد، مسلمانوں سے جنگ۔ اور نمبر 3 کافروں یا منافقوں کے خلاف جہاد۔ یہ 4 طرح کے جہاد ہیں۔ پہلا جو جہاد اور جنگ ہے وہ خود کے خلاف ہے۔ وہ کیسے ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے خلاف جنگ کرے۔ مطلب نمبر 1 اسلام کی صحیح تعلیم، حق اور ناحق کو سیکھنے کے لیے کوشش کرے۔ نمبر 2 اس پر عمل کرنے کے لیے جہاد اور کوشش کرے، یعنی اپنی آخری کوشش لگا دے۔ اور نمبر 3 اسلام کی صحیح تعلیم پہنچانے کے لیے جو بھی قربانیاں اسے دینی پڑے وہ دینے کے لیے ریڈی رہے۔ اور نمبر 4 ان سب چیزوں کی راہ میں، دعوت کی راہ میں، اسلام پر عمل کی راہ میں جو مشکلات، جو چیلنجز اس کو آئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اگر یہ 4 اسٹیپ کوئی مسلمان ادا کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ اسلام کی طرف اس کا پہلا قدم بڑھ گیا۔ دوسرا جہاد، دوسری جنگ شیطان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا سب سے کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟
इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान से जिहाद और जंग दो तरह से। नंबर एक, जो वो शुकूक और शुबहात यानी डाउट्स और क्वेश्चंस हमारे दिमाग में डालता है अल्लाह के खिलाफ। बहुत से लोग सवालात पूछते हैं, अल्लाह ने सारी चीज़ों को बनाया, अल्लाह को किसने बनाया? ये सवाल कौन डालता है? शैतान। नंबर दो, इस्लाम में फला 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 जो कानून है, जो रूलिंग है, क्या ये सही है? क्या ये लॉजिकली है? बहुत सी दफ़ा इंसान को ना समझने की वजह से वो इलॉजिकल समझ में आती है। तो जो डाउट, जो शुकूक, जो शुबात नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में शैतान डालता है, उसे अपने दिल से निकालना, जिंदगी भर उनके खिलाफ लड़ना, ये शैतान से जिहाद का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? शैतान मुसलसल हमारे दिल में बुराइयां डालता है, गुनाह के ख्यालात, ज़्यादती के ख्यालात। चलो ये बुरा काम कर लेते हैं, ये गलत काम कर लेते हैं, ये पाप कर लेते हैं, और उनके लिए जस्टिफाई करता है। ये दूसरा जिहाद ये है कि जब भी बुराई का कोई ख्याल आपके दिमाग में आए, आपके दिल में आए, फौरन ये समझना ये किसकी तरफ से है। बहुत से लोग बोलते हैं सुसाइड के ख्यालात आते हैं, खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, ये किसकी तरफ से? ये शैतान के तरफ से। डिप्रेशन के ख्यालात, ये सब शैतान की तरफ से है। तो ये अपने दिल से बुराई को मुसलसल निकालते रहना, दूर करते रहना, जब भी कोई बुरा ख्याल आए उसको निकालना, ये शैतान के खिलाफ जंग। तो कितनी जंगें हुई? सबसे पहले नंबर पे किसके खिलाफ है? खुद के खिलाफ। नंबर 2 शैतान के खिलाफ, और नंबर 3 खुद मुसलमानों के खिलाफ जंग। यानी मुसलमानों को कहा गया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो। कब? सूरह हुजरात आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है, वइन ताइफतान मिनल मोमिनीन अक़ततलू, अगर मुसलमानों के 2 ग्रुप आपस में लड़ने लगे, जंग हो जाए, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो तुम्हारा काम क्या है? सब मिल करके उन दोनों ग्रुपों के दरमियान इस्लाह कराओ, उनको मिलाने की कोशिश करो। लेकिन अगर फ़इम बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर जुल्म करे, ताकतवर है कोई ग्रुप, ज़्यादा पावरफुल है, वो मुसलमानों के दूसरे ग्रुप पर जुल्म कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, मार रहा है, तो कहा गया है कि तुम जालिम ग्रुप से लड़ो। ये किससे लड़ने की बात कही जा रही है? मुसलमानों से। यहाँ नॉन मुस्लिमों से लड़ने की बात नहीं है, यहाँ बुराई के खिलाफ लड़ने की बात कही जा रही है कि चूंकि बुराई यहाँ पर मुसलमान कर रहा है, जाती मुसलमान कर रहा है, जुल्म मुसलमान कर रहा है, इसलिए तुम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है कि तुम किसके खिलाफ जंग करो? मुसलमानों के उस ग्रुप के खिलाफ जो दूसरे ग्रुप पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की एक हदीस है, उसमें फरमाया कि जो जालिम मुसलमान है, जो अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, जो रसूल के खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ जिहाद करना, यही वर्ड आया है। नॉन मुस्लिम जो आमतौर से इस्लाम को नहीं समझते हैं और उनके जो शरपसंद स्कॉलर हैं, जिन्होंने इस्लाम की खाली कुरान की उस तरह की आयतें कोट की हैं जिसमें कहा गया है काफिरों से लड़ो, मुशरिकों से लड़ो, उनको ये बात मालूम नहीं है, उनके सामने ये पूरी बात नहीं रखी जाती है। क्यों? ताकि मुसलमानों की नफरत उनके दिलों में भरी जाए। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बुराई जहां भी होगी, चाहे मुसलमानों में हो या नॉन मुस्लिमों में हो, उनसे जंग करना है, जिहाद करना है, लड़ाई करना है। यहाँ पर देखिए मुस्लिम की हदीस नंबर 50 है, इसमें साफ साफ वर्ड यूज हुआ है कि उन मुसलमानों से जो जिहाद करेगा अपनी ताकत से, फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मोमिन, जो ताकत से जिहाद करेगा वो मोमिन है, वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुव मोमिन,
जो ज़बान से जिहाद करेगा वो मोमिन है, वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मोमिन, जो अपने दिल से जिहाद करेगा वो मोमिन है। तो कितनी तरह के हो गए जिहाद, जंग? 3 तरह के, अपने खिलाफ, शैतान के खिलाफ, और खुद मुसलमानों में जो जुल्म और ज्यादती करने वाले हैं उनके खिलाफ। अब चौथी क्वालिटी आती है काफिरों और मुनाफिकों के खिलाफ। किस कंडीशन में है, किन कंडीशन में है? सेम कंडीशन है जो मुसलमानों से लड़ने की कंडीशन है। अगर वो भी जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ाई की जाएगी। बेगुनाहों को मारा नहीं जाएगा। अगर पहलगाम में किसी मुसलमान ने मारा है तो पता नहीं किसने मरवाया, किसने क्या किया, वो अलग चीज है, वो भी गलत है, नाजायज और हराम है, खुद कुरान और इस्लाम और सुन्नत की रोशनी में। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है। और आप दुनिया के किसी कंट्री का कानून उठा के पढ़ लीजिए, ये 3 कंडीशन में लड़ना हर जगह अलाउड है, हर जगह। ये फंडामेंटल राइट्स है। नंबर 1, अगर आपको कोई भी आपके दीन और धर्म पर अमल करने से रोकने के लिए मारता है, जुल्म करता है, परसिक्यूशन करता है, और वो कहता है कि तुम अपना दीन धर्म छोड़ दो, ऐसी कंडीशन में जंग करना क्या हो जाती है, जायज हो जाती है। क्यों? क्योंकि राइट टू रिलीजन ये ह्यूमन फंडामेंटल राइट है कि इंसान अपना दीन धर्म मजहब खुद तय करे, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने सूरह हज आयत नंबर 39 में फरमाया, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, जिन लोगों से लड़ाई की जा रही है उनको इजाजत दी गई है कि वो जंग करे। क्यों? इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया। किन पर? मक्के के मुसलमानों पर कितने दिन जुल्म किया गया? 1-2 साल नहीं, 13 साल तक उनको मारा गया, पीटा गया, तपती हुई रेत पर लिटाया गया, फिर भागने पर मजबूर किया गया। कहा जा रहा है कि इनसे जंग करो, इसलिए कि ये लोग तुम पर जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म क्या है? वो कहते हैं कि तुम अपना दीन धर्म छोड़ दो। दूसरा कंडीशन, आपकी जान और माल और इज्जत और आबरू पर कोई हमला करने आए, उस कंडीशन में इस्लाम भी इजाजत देता है और दुनिया का हर कानून राइट टू डिफेंस, अपने आप को बचाने, अपने माल अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की हिफाजत की का हक देता है। चुनांचे अल्लाह ताला कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 190 में, ध्यान से सुनिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग आयतों को पेश करते हैं। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए लड़ो, अल्लाह के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं, फायदे के लिए नहीं, हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, डोमिनेशन हासिल करने के लिए नहीं, पावर हासिल करने के लिए नहीं। किन से लड़ो? अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे जंग करते हैं, जो तुमसे लड़ाई करते हैं, उनसे जंग करना। अब आप बताइए, क्या लॉजिक या दुनिया का कोई कानून ये कहेगा कि आपको कोई मारने के लिए आ रहा है और आप हाथ बांध करके खड़े रहिए कि भाई आ करके हमको मार दो? सेम बात कुरान में भी कही गई है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए लड़ो। किन से लड़ो? अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से लड़ो जो तुमसे जंग करते हैं, इनके अलावा किसी से मत लड़ो। मसलन बच्चों को, औरतों को, प्रीस्ट को, पादरियों को, पुजारियों को, इन सब को मारने की इजाजत नहीं है। कुरान में कहा गया है वला तातदू, और तुम ज्यादती और नाइंसाफी और जुल्म मत करो। मतलब क्या हुआ? जो तुमसे लड़ने के लिए नहीं आता है उनको मत मारो, उनसे जंग मत करो। दो कंडीशन हुई। तीसरा कंडीशन, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, उनको बचाने के लिए जंग करना फर्ज है।
اللہ ताला फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 75 में, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम क्यों अल्लाह के लिए जंग नहीं करते, वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाल वन निसाई वल विल्दान, और उन कमजोर मर्दों और औरतों और बच्चों के लिए जंग नहीं करते जो दुआ करते हैं अल्लाह से, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा, ऐ हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल दीजिए जिसके रहने वाले जालिम हैं। ये किन के बारे में आयत उतरी है? उन लोगों के बारे में जो मक्के में मुसलमान मर्दों औरतों और बच्चों पर जुल्म कर रहे थे। कहा गया है कि इनसे लड़ो, इनसे क्यों नहीं लड़ते? तो 3 कंडीशन है वो दुश्मनों से लड़ने के लिए। नंबर 1, कोई आपकी जान लेने के लिए आए, कोई आपके मजहब और धर्म पर हमला करे, और नंबर 3, किसी बेगुनाह पर जुल्म करे। अब आइए, अगर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जंगें लड़ी, जंग बदर, जंग ओहद, जंग आज़ाब, बड़ी बड़ी जंगें, वैसे 80 से ज़्यादा जंगें हुई। आप देखिएगा कि किसी भी जंग में मुसलमान मदीने से मक्का पर अटैक करने के लिए आए क्या? अक्सर नॉन मुस्लिम कहते हैं क्या इस्लाम जंग, धर, तलवार, ये वो। आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि जितनी जंगें हुई, क्या मुसलमान मदीने से मक्के पर अटैक करने के लिए आए या मक्के के काफिर मदीने पर अटैक करने के लिए गए? जंग बदर में 1000 की फौज लेकर के मक्के वाले मदीने पर गए हमला करने के लिए, वहां के मुसलमानों को मारने के लिए। उनके लोगों ने खुद कहा कि आओ चलो वापस चले जाते हैं, फिर भी नहीं माने। जंग ओहद में दूसरे साल फिर गए, तीसरी हिजरी में 3000 की फौज लेकर के, और जंग आज़ाब में 10,000 की फौज लेकर के मदीने पर चढ़ाई किया। और इन कंडीशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की और जंग की इजाजत दी। अब सवाल यह है, जो मौजूदा जंग है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो तनाव चल रहा है, बहुत से लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। बहुत से मुसलमान अंधे बन करके एक तरफ या दूसरी तरफ है। याद रखिए, आज धोखे, दजल और फरेब का जमाना। जो आपको दिखाया जा रहा है, जो पर्दे के पीछे है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। आपको मालूम है, ये पूरी मीडिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो हिंदुस्तान के नॉन मुस्लिम इंसाफ पसंद लोग हैं, वो बोलते हैं और मुसलसल बोल रहे हैं कि ये वो चीजें सिर्फ दिखा रहा है जो सत्ता और सरकार चाहती है। अब ये जो हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने मारा, इस मामले में हम जो है कोई कतई और हतमी राय नहीं पेश कर सकते। ऐसे कंडीशन में जबकि ये सवाल उठ रहे हैं कि ये हमले का टाइम कब है, जब वक्फ बिल की लड़ाई चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, जब इलेक्शन का टाइम है। फिर पाकिस्तान खास तौर से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये कह रहा है कि यूएन के जरिए से कमेटी तय की जाए जिस पर न्यूट्रल होकर के चेक किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वाकई वो मारने वाले कहाँ के थे, कौन थे वो मारने वाले, क्या वो मुसलमान थे या और कोई लोग थे जिनको बाज़ाब्ता प्लॉट करके लाया गया था। ये सारे सवालात उठ रहे हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें ये कहा गया है कि जब तक कोई हकीकी, हतमी और रियल और ट्रूथफुल जरिया ना हो तुम्हारे पास इल्म का, तब तक तुम किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। और आखिरी बात इस सिलसिले में, इस्लाम की तालीम क्या है, इसके खिलाफ कोई भी जाए, चाहे मुसलमान जाए या नॉन मुस्लिम जाए, दोनों गलत है। ये बुखारी की हदीस है 2965। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर तकरीर की थी और उसमें आपने ये बात फरमाई थी। आपने कहा, यह हदीस से क्लियर हो जाता है कि इस्लाम क्या चाहता है और किन कंडीशंस पे वो जंग करने की इजाज़त देता है। अल्लाह के रसूल
जंग के मैदान में खड़े हैं और लोगों को तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ला ततमन्नौ लिका अलादू, दुश्मन से जंग की तमन्ना मत करो, तुम लड़ने की चाहत मत करो, जंग की ख्वाहिश मत करो, बल्कि क्या करो, वसलुल्लाह अल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत मांगो कि जंग ना हो, लड़ाई ना हो। क्यों? क्योंकि जंग और लड़ाई क्या करती है मालूम? पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देती। अगर सोचिए, अगर ये जंग आगे बढ़ी, अभी जितना नुकसान हुआ इससे और ज्यादा होगा कि कम होगा। इकनॉमी तबाह बर्बाद हो जाती है, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती है, भुखमरी फैल जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करो कि जंग ना हो, लड़ाई ना हो, बल्कि आफियत हो, अमन हो, सुकून है, पीस हो। ये इस्लाम का असल उसूल और कानून है। और इस्लाम ने यह भी कहा कि जो बेगुनाह को मारता है वो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को जिसने मार डाला। और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो इंसान हक पर रहते हुए अपना हक अगर छोड़ दे तो मैं उसके लिए जन्नत के अतराफ में घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब इसके खिलाफ कोई भी करता है तो हम कहेंगे कि वो कौन है? वो इस्लाम का भी दुश्मन है, मुसलमानों का भी दुश्मन है और दीन का भी दुश्मन है। तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है कि इस्लाम में जंग का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी खास कौम के खिलाफ नहीं है, बल्कि पहली जंग खुद के खिलाफ है, दूसरी शैतान के खिलाफ, तीसरी खुद मुसलमान जालिमों के खिलाफ, और चौथे नंबर पर अगर नॉन मुस्लिम जुल्म करता है तब उसके खिलाफ है। और आखिरी बात क्या है कि इंसान को आफियत मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, अमन और पीस मांगना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तरह की बुराइयों से, हादसात से, जंग से हम सबकी हिफाजत फरमाए, अमन व अमान कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जंग की बुराई से महफूज फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति।